from Barasat, that is Brainware Group of Institutions. So after doing my graduation, I started my career in marketing in Chloride Power Systems. And right now I have changed the job and is also doing the marketing job in Statcon Energia Private Limited. So that's all, Vasan. Thank Okay, you. that's nice. So Prasanjit is actually willing to change his domain from marketing to IT. So best of luck, Prasanjit, and we hope we'll actually get you through to your dream job as well. Okay, moving on to the next person. Shafaq, can you just introduce yourself as well? Hi, Shafaq. Hello. Yeah, Yeah, Shafaq, go I'm ahead. Shafaqnaya Malik. I'm from Jamshedpur and I've done my master's from Jadavpur University in 2020. Yeah, and right now I'm just learning new things and I've not been working anywhere yet. Okay, so Shafaq is a fresher and she's actually looking for opportunities in IT. So wish her best of luck as well here, and we will move forward. Yeah, Yeah. thank you. So Zakia, can you introduce yourself, please? Hi, Zakia. My name is Amish. Okay, I think Zakia, you are on mute. So we'll just move on to Amir. Until then, Zakia can unmute and go ahead. Yeah, Amir, you can just go ahead, please. Yeah, my Hello. name. Hi guys, Yeah, hi, uh, Amir. Go ahead, please. my name is Amir Ashwag. I have done my schooling from St. Thomas's Boys School, Kolkata. I have done my BTech in IT in 2019. Currently I am looking for a job, so I want to start my career from testing domain. Okay, Amir, that was nice of you. So Zakia, are you there now? Hi, Zakia. You are still on mute. Can you unmute yourself, please? Okay. So moving further, we have Baban. Baban, can you introduce yourself, please? Hi, Baban. Hello. Yeah, Hello. Baban, please Good introduce morning. yourself here. Yeah, good Yeah. morning. My name is Bhuvan Kumar. You're not audible, Baban, please. Hello. I think we are not able to connect with Baban properly. So we'll move to Sharik. Sharik, can you introduce yourself, please? Hi, Sharik. Good morning. Okay. So next we have Iram here. She was actually from one of the previous batches. So she will be actually be guiding you all. She is a mentor for this particular batch, and also we have one more mentor. Maybe he'll join a little late due to some personal work. So we have Iram. Hi Iram, good morning. Hi, Prasan. Good Sorry. morning. Yeah. So we have Iram. So Iram, just give a brief introduction about yourself, and then we'll start with the class. Okay. Hi, everyone. Good morning. And myself, Iram here. As we already interacted previously, so I'm from Regrow First Batch and currently working in Accenture since 2 years. And I'm gonna mentoring you guys. Yeah. So it is nice that we have Iram as well with us. And just to brief you about myself, who exactly I am, uh, just give me a second.
Actually, there was a call from one of the person here, so she was not able to join. So sorry for that. Let me just add her as well here. Yeah. Okay. So let me introduce myself. I am actually Fazan Tariq, and I am currently working with one of the organizations in Bhubaneswar, and I am working there as a senior software test engineer. And my basic role is I'm actually into one of the projects which is based in US. And apart from that, I am actually part of the interviewers group in my organization. And in addition to that, I mentor some of my colleagues here who are actually moving from manual to automation, or someone who's joined new and are actually learning hot skills in automation. So I have been guiding them through. And also for those who have actually learned through others, for them I just review them as well, like how exactly is the performance, or are they good enough to be placed in any project. So this is what I am doing currently in my organization, apart from this regrowtech task, which is where I'm actually putting my time to teach you people and help you people to get into a desired job. Okay, so this is something about me. And yes, so Baban is there. I think Zakia is facing some issue with the audio. So she is actually born and brought up in Jamshedpur. She did her higher education in BSc IT, and she's 2018 pass out, and she will be actually looking for opportunities in IT as well. So for Baban, are you there? Is your system proper now? Yes, yes, I am here. Yeah, Baban, go ahead. Please introduce yourself now. Yeah, I'm Mohan Kumar Devata. I'm from Odisha. I'm 24 years old. Then I had done MSc in BJP Autonomous College in 2019. After that, now I am a fresher, and my hobby is playing cricket, listening music. That's all about me. Okay. So Baban is from Odisha, and he is also looking for opportunity in IT. So he will also be joining. Yes. So we are here to start our class, today's class. So before we start, I'll just tell you few things. ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको clear कर दूं, because I think everybody is Hindi speaking right here. Hi Shari, good morning. Yeah, yeah. Yes, yes. Yeah. So everybody understands. Sorry. Everybody understands हिंदी here. So हम लोग कुछ पार्ट हिंदी में भी बताएंगे, बिकॉज होता क्या है जनरली कि कुछ चीजें हिंदी में समझ में ज्यादा बेटर आ जाती है, तो वेन एवर इट इज लाइक नीडेड, सो उस टाइम हम लोग हिंदी पे फोकस करेंगे, सो दैट कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे अभी होगा क्या, व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इज, आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद वी विल बी सेंडिंग यू अ कैप्सूल. कैप्सूल है इनफैक्ट, उसमें वॉट एवर विल बी टॉट इन द क्लास, आपको सेम चीज की क्वेश्चंस मिलेगी, एंड ऑल्सो द नोट्स. ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन इन अ नोटबुक. आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज लिखने से एंड अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉल दैट, तो वो आपको एक बेनिफिट मिलता है. और ये करके यू हैव टू सेंड दैट whatever you have written in the notebook, you just take a pic of that and send it in our, to me personally, okay, or in the regrow group that we have. So you can send it there, and our mentors will be looking into it and they will be marking your performance. तो ये हर दिन का टास्क होगा, like after each class you will be getting, so in between you get almost a 1 day time, so 24 hours का time होता है. You have to submit your capsule answers. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन अ डेली बेसिस. और उसके बाद यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स एज वेल ऑन अ डेली बेसिस, जिसके बेसिस पे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो अपनी चीज़ों को, एंड लाइक वट एवर इज टॉट इन टूडेज सेशन, द नेक्स्ट डे वी विल जस्ट डू अ क्विक रिविजन ऑन दैट. उस पर क्विक रिविजन करने के बाद वी विल प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक्स. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो until we get the assignments. तो जब assignments आएंगे, we will be telling you how you are going to वर्क ऑन दी असाइनमेंट्स. ठीक है, सो अभी हम लोग बस स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट हियर. so let me just bring it. Okay, let me first share my screen. Just let me know if all of you are able to see my screen. Okay, I have shared it now.
Are you able to see my screen? Yes. Thank you. Okay. So today is our day one at Regrow Tech, and in our day one session, we will be going through some of the basic things in Java probably. Okay. So before we start, let's start it on a positive note. So since already you have taken the first step, like you have actually enrolled yourself now, or you are still in the process of enrolling yourself, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपने जो लिया है, दैट इज समथिंग विच इज बिगर, बिकॉज वो आपको बहुत क्लोज ले जाता है आपके ड्रीम से, एंड एवरी डे आपका जो छोटा छोटा स्टेप्स होगा, दे आर गोइंग टू टेक यू टू योर गोल. ठीक है, तो बस ये हम लोग को माइंड में रखना है, देयर इज नथिंग दैट इज अनअचीवेबल. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं, एंड देयर इज नथिंग दैट ह्यूमन काइंड कैन नॉट डू. ठीक है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो ह्यूमन चीज नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो इसीलिए we have taken the first step towards getting somewhere, okay, by deciding that we are not going to stay where we are now. ठीक है, तो हम लोग जहां पे हैं, we have already decided अब हम लोग को करना है कुछ, and we have to prove ourselves to the world. ठीक है, चल, तो this is something that we all will have in ourselves. ठीक है, हमारे अंदर ये स्पार्क होना है कि we have to prove ourselves to the world, to our own selves, क्योंकि खुद को प्रूव करना है. ठीक है, चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, एंड वी विल बी हैविंग अ क्लास अंटिल 9:30. ठीक है, 2 आवर्स का ये सेशन है ऑन वीकेंड्स, सो इट विल गो टिल 9:30, एंड इन बिटवीन वी विल बी हैविंग अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5 minutes. कम ऑन, मूविंग ऑन. व्हाट एग्जैक्टली इज जावा? जावा क्या होता है? ठीक है, जावा को पढ़ने से पहले लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इट, कि एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या जावा में. ठीक है, तो हिस्ट्री क्या बोलता है? इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग. जेम्स गॉसलिंग कौन है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ जावा. ठीक है, सी दीज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट. if you see from interview perspective, these things are not important, so we are not going to spend most of our time learning these things. ठीक है, ये इंटरव्यू पे ये सब नहीं पूछा जाता है, बट कोई आपसे बाहर पूछ ले कि यार तुमको जावा पता है, बताओ कौन है, हु इज जेम्स गॉसलिंग, तो आपको पता होना चाहिए. इस वजह से विल जस्ट डू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग मेजर कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज जावा? जावा क्या है, ये हम लोग को पढ़ने से पहले ये जानना है कि बनाया किसने था. तो इट वाज जेम्स गॉसलिंग हु डेवलप्ड. ठीक है, along with two of the members in his team. ठीक है, and he is known as the father of Java. ठीक है, and where was it developed? It was developed in Sun Microsystem. This was the place where it was developed. Okay, and previously this Java was known as Oak. ठीक है, Oak के नाम से जाना जाता था ये Java previously, but these people changed the name from Oak to Java. ठीक है, और Java है क्या exactly? Java is nothing but a simple programming language. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम लोग यूज करके वी आर गोइंग टू राइट आर कोड. ठीक है, हम लोग उससे कोड लिखेंगे, एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, बहुत सिंपल है सच में. ठीक है, और दूसरा है कि अभी भी मार्केट में देयर आर ओवर 80% कवरेज. अभी भी 80% इंडस्ट्रीज में, 80% कंपनीज में अभी भी जावा काफी ज्यादा मतलब यूज होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है. इस वजह से क्या है पता है, कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसका जितनी भी चीजें हैं ना, सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है. आपको कुछ भी चाहिए, यू जस्ट गूगल इट, आप गूगल करो, आपको तुरंत सारी चीजें मिल जाती है, एंड सो इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड. ठीक है, ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है, एंड दिस इज केस सेंसिटिव. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. केस सेंसिटिव का मतलब क्या था? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव? ओके, सो आई जस्ट टेल यू कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है. देखो, केस मतलब क्या हो गया? अपर केस, लोअर केस, राइट? आप लोग पढ़े हो अपर केस, लोअर केस? गाइस, आई वांट यू पीपल टू रिस्पोंड, तब थोड़ा सा क्लास इंटरैक्टिव बन. नहीं, अपर केस लोअर केस नहीं जानते हो, चलो कोई नहीं. अपर केस किसे बोलते हैं? जो बोलते हैं ना कैपिटल लेटर्स, बचपन में पढ़ते थे अपर केस. Yes, yes. अपर केस में क्या हो गया? ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, अप टू कैपिटल जेड, आपका जो भी. ठीक है, एंड लोअर केस क्या होता है? लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स जो हम लोग पढ़ते थे, लोअर केस. तो लोअर केस क्या हो गया? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, एंड अप टिल आपका जेड. ठीक है, तो ये लोअर केस बोलते हैं, ये अपर केस एंड लोअर केस. तो जावा में इफ आई एम राइटिंग, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग समवन्स नेम, सपोज वी हैव हियर आपका, वी आर टेकिंग, चलो वी आर टेकिंग जाकिया. ठीक है, we are taking this name Zakia. So this Zakia is not same as, this Zakia is not same as small z a k I y a. ठीक है, आई बात समझ में?
This Zakia is not same as Zakia in lower case. समझ गए? हाँ कि ना? बताओ, आपको आई समझ में ये चीज? Yes. Yes. ओके, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे हमारा जो भी है, ओके जस्ट गॉट अ पर्सन टू ऐड, जस्ट ऐड ना, ओके, तो ये हो गया हमारे एंड से, ठीक है, कि ये अगर है तो इसी तरह से अगर इफ वी हैव टू राइट एनी वंस नेम, ठीक है, इफ वी आर राइटिंग यहाँ पे आपका शफाक, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं FAQUE, कहीं पे भी एक Q को मैंने कैपिटल कर दिया, इज नॉट सेम एज SHAFAQUE, इट इज नॉट सेम, ठीक है, अगर कुछ भी है, ठीक है, देन केस सेंसिटिव मींस अगर वो उसमें थोड़े से भी चेंजेस हैं तो दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट कंसिडर्ड सेम, ठीक है, समझ गए? Yes. Okay, so this is something that is related to guys, I'll just request each one of you ki like whenever I am speaking, just keep yourself mute, okay, because this will create disturbance, okay, so चलो मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये केस सेंसिटिव क्या होता है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज केस सेंसिटिव, तो अपर केस क्या होते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, लोअर केस क्या होते हैं जो स्मॉल लेटर्स में हम लोग लिखते हैं, एंड केस सेंसिटिव जावा इज केस सेंसिटिव, मतलब अगर ये कैपिटल जेड से मैंने जाकिया लिखा था, इट इज नॉट सेम एज स्मॉल जेड से जाकिया, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली दैट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आपका जेड है, ठीक है, दैट इज कैपिटल इन वन प्लेस एंड स्मॉलर इन द अदर प्लेस, so these two are not same, so Java doesn't consider them to be same, जब ये same नहीं होते हैं तो फिर this is called case sensitive, तो इस वजह से हमारा क्या है, this is case sensitive, ठीक है, is it clear now? Excuse me. Yeah, sorry to interrupt, but I don't know because of some network issue, I got disconnected. So could you please tell me what did I miss? Yeah, sure, I'll just revise this, I'll just Yeah, recapitulate I'm this so particular sorry. yeah, this particular slide so that Yeah. everyone gets a revision of this. Okay, so Java किसने डेवलप किया था? Come on, I want you people to answer. I want this session to be more interactive. जितना इंटरैक्ट करोगे उतना सीखोगे. Okay, come on, किसने डेवलप किया था? Who James developed? Gosling. It was James Gosling. जावा का पुराना नाम क्या था? याद है? Oak. 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 Java was known as Oak. Oak. ठीक है, और कहाँ पे डेवलप हुआ था? It was developed in Sun Microsystem. Correct? कहाँ पे डेवलप हुआ था? Sun Microsystems. Sun Microsystem, and it is one of the simple programming language. I am actually giving you confirmation on this. बहुत easy है, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है for this, ये आपको खुद पता चल जाए कितना easy है ये, ठीक है, because today we are going to write one simple program. हम लोग आज एक simple program भी लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कितना easy है ये, ठीक है, चलो, एंड इट इज वाइडली यूज क्यों है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि अभी इंडस्ट्री में मोर देन 80% कंपनीज आर स्टिल यूजिंग जावा, ठीक है, यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इतनी सारी वैकेंसीज है जावा में, ठीक है, एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब कि इसकी सारी जितनी भी इश्यूज अगर आप फेस करते हो ना, जस्ट गो गूगल इट, आपको हर जगह मिल जाएगा, यू हैव अ वाइडर कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है, एंड दिस इज केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सेम, ओके, आर यू गेटिंग नाउ, समझ में आ रही है चीजें? ओके, दैट्स रियली गुड, तो ये हो गया, तो अभी पता है आपको जो जावा है ये सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, बट प्रेजेंटली ये है किसके पास, एग्जैक्टली जावा है किसके पास? अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, याद है, जावा जेडीके लिखकर, कौन से पहले साइट पे किया था? Oracle, ठीक है, it is right now with Oracle Corporation. Oracle Corporation holds the license to this one Java अभी, ठीक है, तो अभी Java किसके पास है? Oracle के पास है, ठीक है, तो this was something that was very brief introduction about Java की किसने बनाया, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, what exactly it is, और केस सेंसिटिव तो ये बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, widely used and well documented. क्यों है वाइडली यूज? बिकॉज अभी इंडस्ट्री में काफी यूजेज है, एंड देन वेल डॉक्यूमेंटेड बिकॉज वी हैव अ लार्जर कम्युनिटी, जितना यूज होगा उतनी बड़ी कम्युनिटी होगी हमारे पास. इज इट ओके फॉर ईच वन ऑफ यू? समझ में आ रहा है आमिर? शफाक? Yes. गुड फॉर नाउ? Yes. ओके, थैंक यू. तो ये हो गया हमारा, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जावा पे. नाउ मूविंग ऑन कि जावा के फीचर्स क्या क्या है. सॉरी, जावा के फीचर्स क्या क्या है? तो जावा का सबसे बड़ा फीचर जो है, ठीक है, इट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सॉरी,
इट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ अभी ये समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल्स होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये चार चीजें बस नाम के लिए याद रखो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, क्योंकि जावा में सबसे ज्यादा हम लोग डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्या होता है बस, ठीक है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका प्रिंसिपल में क्या क्या आता है आपका? इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट इट हियर। आपके इसमें क्या क्या आएगा? आपके आएगा, ओके चलो, ऊप्स में क्या क्या होता है, विल जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। ऊप्स मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये हो गया। चलो, तो इसमें हमारा क्या क्या आता है सिर्फ ये याद रख लो। इसके प्रिंसिपल्स में एक आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, POLY, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। वी आर गोइंग टू रीड ईच वन ऑफ दीज इन डिटेल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस जस्ट अ डेफिनेशन पार्ट हियर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन इज inheritance and then comes your encapsulation. Next one is your, what it is? Abstraction. Sorry? Abstraction. Abstraction. Okay, come on. So these are few of the concepts जो कि oops में होते हैं, and we are going to study them in much detail, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलो हम, सॉरी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। देन इट इज सिंपल। सिंपल मैंने कहा है कि ये काफी सिंपल होता है, ये बहुत, इसके जो सिंटैक्स होते हैं ना, जो व्हाट द वे ऑफ राइटिंग, सिंटैक्स मतलब होता है जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी है, ठीक है। आप आराम से उसको समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बिकॉज वी विल बी सीइंग अ सिंपल प्रोग्राम टुडे। हम लोग बहुत एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे एग्जैक्टली जावा में कैसे प्रोग्राम लिखना भी है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ कम्स टू सिक्योर्ड, ठीक है। तो जावा जो है ये काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को, ठीक है। इसके पास एपीआईज होते हैं, ठीक है। इसके पास अपने क्लास लोड्स होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर के अंदर में क्या है, बिकॉज इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेंगे किसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन डिटेल। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी किसी के बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, एक्सेप्ट वन मोर थिंग, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली क्यों है, ठीक है। और बाकी जितने भी आप यहाँ देख रहे हो ना, दीज आर एक्चुअली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, जिसको पता होना चाहिए कि हाँ जावा का ये फीचर्स होता है, ठीक है। तो चलो, तो ये सिंपल है, सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काफी एपीआईज होते हैं इसके पास, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन कमिंग टू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रोग्राम लिख के हम उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोरा, WORA, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? राइट वंस रन एनीवेयर। W का मतलब क्या हो गया? राइट, O का मतलब हो गया वंस, R का मतलब रन, A का मतलब हो गया एनीवेयर, ठीक है। तो वोरा, तो जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है, पता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि ये काफी सिक्योर होता है, ठीक है। काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काफी एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रोबस्ट बोला जाता है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये मतलब जल्दी वल्नरेबिलिटीज को अपने अंदर आने नहीं देता है, ठीक है। और ये होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसको लेके कहीं पे घूम सकते हैं हम, ठीक है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है? जिसको लेकर कहीं पे भी हम लोग घूम सकते हैं,
ये हो गया आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब होता है जैसे हमारा सिस्टम किसने देखा है कि कोई कोई होता है कि 32 बिट होता है, कोई कोई सॉफ्टवेयर बोलता है 64 बिट, याद है? देखा कहीं पे ऐसा 64 बिट 32 बिट सिस्टम में? देखे हो? तो ये जो होता है ना कि आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब होता है कि चाहे वो 32 बिट हो चाहे वो 64 बिट हो, ठीक है, दोनों के लिए इसके पास बिल्कुल सेम सेट ऑफ रूल्स है। ऐसा नहीं है कि 32 बिट के लिए रूल अलग है 64 बिट के लिए रूल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ठीक है। और ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब हम लोग कभी भी क्लास इंस्टेंस को अपने हिसाब से लोड करा सकते हैं। हमको अगर किसी चीज की भी जरूरत है तो हम उसको तुरंत कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दैट मेक्स दिस जावा डायनेमिक, ठीक है। इंटरप्रेटेड, ठीक है, जावा की बहुत अच्छी फीचर है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, जावा की जो इंटरप्रेटेड फीचर जो जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरप्रेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा ये कंपाइल पहले होता है देन इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो कंपाइल क्या होता है कि आपका जो जावा कोड लिखते हो वो उससे पहले कंपाइल कर लेगा, फिर उसको एक फॉर्मेट में चेंज कर देगा जिसको मशीन समझ सके, ठीक है, और उसके बाद उसके हर एक एक लाइन को वो रीड करके सॉल्यूशन देता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस इन द सेंस कि ये इंटरप्रेटेड के ग्रुप में जितने भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइक आपके पाइथन हो गए, आपका पर्ल हो गया, ये सब लैंग्वेज के बेसिस में इसका स्पीड काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पाइथन कंपाइल को भी यूज कर लेता है और कंपाइलर जो होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है। दिस आर जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मैं बता रहा हूं एंड जस्ट विल अगेन डू अ रिकैप्चुलेशन ऑफ दिस वन, ओके। तो अभी डरना नहीं है। और फिर आते हैं मल्टी थ्रेडेड में, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? सपोज कि यहां पे हमारे पास एक काम करना है, ठीक है, इफ वन पर्सन इज डूइंग इट ही टेक्स 5 डेज, 5 दिन लेता है, हाँ कि ना? मतलब बताओ, एक एग्जांपल पकड़ रहे हैं अगर कि अगर वो लेता है तो 5 दिन लेता है। अगर हम 5 आदमी को लगा दे सेम काम के लिए तो वो एक दिन में हो जाएगा? बताओ होगा कि नहीं? हेलो? हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो, तब थोड़ा मजा आएगा यार, इंटरेक्टिव हो गए सेशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो होता है कि अगर हम एक काम है जिसमें 5 दिन लगेगा एंड इफ आई पुट 1 पर्सन तो वो 5 दिन लेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम 5 आदमी को लगाएंगे तो वो एक दिन में कर देगा। तो दैट कॉन्सेप्ट वर्क्स हियर। यहाँ पे आपका वही कॉन्सेप्ट काम करता है मल्टी थ्रेडिंग में। तो इसमें क्या है, 1 थ्रेड मीन्स 1 पर्सन, ठीक है। तो एक पर्सन को काम करना है, तो और क्या है, अगर हम 5 थ्रेड्स बोलते हैं तो ये पांचों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंटली दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मल्टी थ्रेडेड का फीचर में, ठीक है। और मल्टी थ्रेडेड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब हमको कोई भी चीज की स्पीड बढ़ानी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पता है क्या है कि कोई भी सिस्टम पे रखा है आई कैन कॉल दैट फाइल, ठीक है। जो एपीआई यूज करते हैं हम लोग कि किसी भी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे रखा है, ठीक है, जावा कोड, तो आई कैन यूज दैट, आई कैन कॉल दैट फंक्शन, ठीक है, हम उसको बुला के कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा। टू बी ऑनेस्ट आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड में भी था कि जावा का डेफिनेशन में जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्योर्ड बोल दो ठीक है, बोल सकते हो डेफिनेशन में, दिस इज गुड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, बट ये आपको अपने डेफिनेशन में रखना है, ठीक है। एंड देन कम्स योर रोबस्ट। तो ये आपका जो 1 से 5 है ना, these are the 5 things that you have to remember for your interview के नाम पे। मतलब if somebody is asking what are the features of Java, ठीक है, ये बिल्कुल इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है, बट 1 आउट ऑफ 100%, ठीक है, अगर आप 100 इंटरव्यूज दे रहे हो तो कोई हो सकता है कोई एक होगा जो कि बहुत मतलब एक्सपीरियंस अब आदमी होता है ना, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ फीचर्स क्या होते हैं जावा के, जावा क्या होता है, ठीक है। तब आपको बोलना है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज वेरी सिंपल एंड सिक्योर्ड, ठीक है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रोबस्ट। बस ये 5 चीज बोल दोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी आप याद रखो या नहीं रखो, इट्स जस्ट ऑन यू, ठीक है, आपको वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बस ये 5 को ही सिर्फ नाम याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, सिक्योर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रोबस्ट, ठीक है। एंड अदर्स आर डेफिनेटली द फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है, ये डेफिनेटली आपके फीचर्स हैं जावा के, ठीक है, जिसको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा,
ठीक है, बट ये याद रखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, एंड द नेक्स्ट टू इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है, सारे टर्म्स क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो पूछो फिर बताता हूं। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? नो। ओके, Not yet. okay, if anybody is having they can just interrupt and they can just ask me anything they want to. Okay, तो ये हमारा हो गया basically what are the features of Java, Java के features क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं कि what is Java, Java क्या है, किसने बनाया था, जेम्स गॉसलिंग। विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन, ठीक है, ताकि याद होते जाए, और मॉर्निंग के टाइम आप जितना बोलोगे ना उतना याद होता है। ठीक है, चलो जल्दी से बोलते हैं हम लोग। तो बताओ किसने डेवलप किया था, हु डेवलप्ड जावा? जेम्स गॉसलिन। James Gosling, वेयर? Sun सन Microsystems. माइक्रोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली इज जावा? जावा इज अ Simple programming सिंपल language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java is a चलो विल जस्ट simple ट्राई टू programming language. रिकैप्चुलेट कि अगले स्लाइड में क्या क्या था। एक तो सिंपल हो गया, और बाकी चार चीजें और क्या क्या थी, जल्दी बताओ। Object-oriented programming language, Perfect. simple, robust, करेक्ट, secure, platform independent. परफेक्ट। ठीक है, ये 5 हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट टू। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाटएवर यू वांट टू, अगर आप ऐड करना चाहो तो यू कैन गो ऑन। ठीक है, और इट इज वाइडली यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है बता दिया, इंडस्ट्री में यूज होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी लार्जर कम्युनिटी है, ठीक है, जो इसको यूज करती है, एंड दिस इज केस सेंसिटिव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जावा केस सेंसिटिव होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम में लोग गलती करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में लोग गलती करते हैं इस पे। चलो मूविंग ऑन, तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। करेक्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में हमारा क्या होता है, देखो, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं ना, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आई जस्ट पेस्ट दिस इन द ग्रुप सो दैट जिसको लगेगा दे कैन जस्ट रेफर इट। आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप, कंट्रोल वी, ठीक है, दे कैन रेफर दिस। चलो, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पे क्या होता है, देखो, हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं ना कभी भी, तो हम लोग कुछ कुछ देखेंगे भी चीजें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ। ओके, चलो, तो हम लोग जब भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो जावा किस फाइल में कन्वर्ट करता है, जैसे होता है ना, हम लोग जब एमएस ऑफिस में कोई फाइल बनाते हैं, एमएस ऑफिस वर्ड में, ठीक है, तो बताओ इसका एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बताओ, किसी याद है? .txt. .doc, डॉक होता है। ठीक है, अगर हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो क्या होता है? .txt. .txt होता है। ठीक है, एक्सेल का बनाते हैं तो .xls. .xls, आजकल तो x भी आ गया, ये भी आ गया SLX, ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, तो डॉट लगा देते हैं। चलो, तो इसी तरह जब जावा का कोड लिखते हैं तो वो भी कोई एक्सटेंशन बनाता होगा, हाँ कि ना? .java. तो वो होता है हमारा .java। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये जो जावा वाली फाइल है, ठीक है, अगर हम लोग जावा यूज कर रहे हैं तो वो क्या बनाता है, .java बनाता है आपका। ठीक है, .java फाइल। तो ये जो .java फाइल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जावा क्लास फाइल। क्या बोलते हैं? जावा क्लास फाइल. क्लास फाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा जावा का क्लास फाइल है ये। ठीक है, तो जो भी होगा, तो याद रखना है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी प्रोग्राम एंड सेविंग इट, तो हमारा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वो .java होता है। ठीक है, याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा ना? ठीक है, तो अब क्या होता है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जावा में सिर्फ इंटरप्रेटर अकेले काम नहीं करता है, जावा में दो चीजें काम करती है। तो जावा में क्या क्या चीज काम करती है? जावा में सबसे पहले काम करता है आपका कंपाइलर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन काम करेगा? कंपाइलर। ठीक है, सबसे पहले कंपाइलर काम करता है, तो इस वजह से जावा हाई परफॉर्मेंस वाला बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर बहुत फास्ट होता है इंटरप्रेटर से। ठीक है, कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर से बहुत फास्ट होता है। और कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर एक सिस्टम है जो कि हमारे फाइल को कन्वर्ट कर देता है किसी चीज में, जैसे .java है ना, उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। तो वो काम करता है, वो कन्वर्शन वाला काम करता है, ताकि जो हम लोग अपने हिसाब से कोड लिखे हैं वो कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। एंड सेम गोज फॉर इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, जस्ट मार्क इट, सिर्फ याद करने के लिए। कंपाइलर आपके पूरे फाइल को कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड कर करके, एक एक लाइन को रीड कर करके फिर कन्वर्ट करता है। ठीक है, रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है, रीड किया, कन्वर्ट किया, रीड किया, कन्वर्ट किया, तो इट टेक्स टाइम। तो इंटरप्रेटर इज जनरली स्लोअर, और कंपाइलर क्या होता है, फास्टर होता है। वो पूरे फाइल को एक बार रीड करके एक ही बार कन्वर्ट कर देता है। समझ गए, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, क्लियर है अब? तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा सबसे पहले कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो ये डॉट जावा फाइल है ना, जो हमारा डॉट जावा फाइल था, जो हम लोग लिखा था कोड, है ना, जो हम लोगों ने कोड लिखा था वो डॉट जावा फाइल था। तो इसको क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट कर देता है डॉट जावा सी फाइल में, जावा सी फाइल में। और ये जावा सी फाइल हमारा क्या है एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है, इसका नाम है, जैसे इसको बोलते हैं ना जावा क्लास फाइल, तो इसको बोलते हैं ये बाइट कोड का फाइल हो गया। ये क्या हो गया बताओ, बाइट कोड। बाइट कोड का फाइल हो गया। एवरीवन इज फॉलोइंग राइट? शफाक फॉलो कर रही हो? Yes, sir. प्रसन्नजीत? यस यस। ओके। बबन फॉलो कर रहे हो ना? चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कि ये हमारा होता क्या है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले हमारा जो डॉट जावा फाइल होता है उसको कन्वर्ट करके डॉट जावा सी फाइल बना देता है, विच इज कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है, तो ये वाले को कंप्यूटर समझ सकता है, हमारा जो भी कंपाइल मतलब जो है हमारा जेवीएम, उसमें जब हम लोग फीड करते हैं तो ये इससे समझ पाएगा। ठीक है, चलो, तो हमारा यहाँ पे देखो आप डायग्राम को, जो हम लोग जावा का ये प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया सोर्स कोड। देखो हम लोगों ने जो लिखा था दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है वो हमारा क्या होता है, डॉट जावा वाला फाइल होता है। करेक्ट, यहां तक समझ में आया बात? जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो किसमें होगा, डॉट जावा वाले फाइल में। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, चलो, तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये जावा कंपाइलर है बीच में। ठीक है, जावा कंपाइलर क्या इसका काम है, कन्वर्ट करना है कोड को हमारे ऐसे कोड में जो कि कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, तो वो जावा कंपाइलर क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है आपके जावा बाइट कोड में। ठीक है, जिसका क्या होता है एक्सटेंशन, डॉट जावा सी। जावा सी मतलब डॉट जावा कंपाइल्ड, जावा सी का मतलब क्या होता है, डॉट जावा कंपाइल्ड हो गया। ठीक है, तो वो बाइट कोड में हो जाता है। उस फाइल का क्या नाम होता है, बाइट कोड। क्या होता है बताओ, बाइट बाइट कोड। ठीक है, तो यहां तक अभी हम सिर्फ एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, सिर्फ हम एक लाइन बना देते हैं, लेट मी चेंज द कलर। यहां तक जो है हम बस एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा कि लाइन क्यों बनाया मैंने। ऊपर वाला जो 3 पार्ट है उसको अलग कर दिया, नीचे वाले 3 पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये जो 3 पार्ट है ना, ये आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, कहीं पे भी मतलब किसी भी कंप्यूटर में आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्शन पार्ट। ठीक है, कि ये आपका बाइट कोड बन गया। आप जब ये बाइट कोड बन गया है, इसके बाद फिर क्या होगा हमारा, ये बाइट कोड जो है ये हमारा रन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बाइट कोड को हम लोग जब रन करेंगे, बाइट कोड, ठीक है, इसको रन कौन करता है, बाइट कोड रन करता है जेवीएम। कौन रन करता है बताओ, कौन रन करता है? ठीक है, JVM. जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बाइट कोड। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है रनिंग करने के लिए? ठीक है, तो जेवीएम का फुल फॉर्म बता दूं आपको, जावा वर्चुअल मशीन होता है। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। हाँ सॉरी, एनीबॉडी इज इन डाउट? हाँ बबन गो अहेड। Sir, speak again. What is the difference between compiler and interpreter? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बीच में मैंने डिफरेंस बताया अभी। ठीक है, एग्जैक्टली। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपके जो पूरा सोर्स कोड है ना, उसको उठा के वो पूरे सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो एक ही बार में आपका कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है,
और इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर मतलब एक एक लाइन को रीड करेगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, माई नेम इज बबन, ठीक है, स्पेलिंग के लिए थोड़ा ये करना, ठीक है, ठीक है, माई नेम इज बबन, आई एम एट रिगरोटेक, ठीक है। तो ये समझ लो कि दिस इज इन वन फाइल, ठीक है, ये मेरा एक फाइल है जो मतलब मान लो कि कंसिडर कर लो डॉट जावा में लिखा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ जावा, सिर्फ कंसिडर कर लो, ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ठीक है, 2 लाइन है आपके। तो कंपाइलर क्या करेगा पता है? जैसे मान लो ये फाइल का नाम है एबीसी, ठीक है, फाइल का नाम क्या है? एबीसी। तो ये एबीसी को पूरा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट, ये अंदर के एक एक लाइन को रीड नहीं करेगा, पूरा लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, दैट इज डन बाय कंपाइलर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर पहले रीड करेगा इस वाले लाइन को एंड देन इट विल कन्वर्ट, ठीक है, फिर इस वाले लाइन को रीड करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, ठीक है, जिसको मशीन लेवल कोड बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। बबन क्लियर नाउ? कंपाइलर डायरेक्ट कंपाइल करेगा, करेक्ट, डायरेक्ट कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर फर्स्ट रीड करेगा देन कंपाइल करेगा। इंटरप्रेटर हर एक लाइन को रीड करेगा, ठीक है, वो उसके अंदर देखो हर एक लाइन था ना, तो उसे रीड कर रहा था इंटरप्रेटर, एंड कंपाइलर क्या किया? कंपाइलर पूरे फाइल को रीड कर रीड दोनों में करना है, लेकिन कंपाइलर पूरे फाइल को एक बार में रीड कर लेता है, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है? एक लाइन को रीड करेगा फिर कन्वर्ट करेगा, फिर एक लाइन को रीड करेगा फिर कन्वर्ट करेगा, दैट इज डन बाय इंटरप्रेटर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा इस एंड से। Excuse me, just one more thing. Like previously, you said like Java interpreter difference. I understood, but previously you said that because of the presence of a compiler, Java is faster. Right? Yes. देखो, But Java has both compiler and interpreter, right? From Perfect. that diagram, हम्म we have understood that it has both compiler and an interpreter. हम्म So how does the presence of compiler makes it Where faster are we than actually other using language? interpreter? That is your question, right? Compiler Yeah, तो yeah. देख दिया, interpreter वाला part No, आते हैं अभी। no. The thing is that previously, like you told, no, because of the presence of compiler, Java is faster than other languages, right? It has an upper hand. Upper hand over interpreted languages. Okay, the other languages uses Compiler. Like C++ is a compiler based programming language जिसमें compiler use होता है C++ में, ठीक है। बट आपका पाइथन हो गया और आपका पर्ल हो गया, देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आते हैं जिसका हर एक एक लाइन रीड होता है, ठीक है। तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में ये एक फास्टर होता है, ठीक है। Okay, it uses compile, like I am not understanding the role of compiler in making it faster, because it's using interpreter as well, no? हाँ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली यूज क्यों करता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, दे विल बी एक्चुअली इन अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, वो लोग क्या करते हैं, दे विल बी एक्चुअली कन्वर्टिंग, ठीक है, वो लोग पहले आपके एक एक लाइन को रीड करेंगे एंड देन दे विल बी कन्वर्टिंग इट, राइट। तो ये क्या करता है कंपाइलर? इट ऑलरेडी कंपाइल्स योर जावा प्रोग्राम एंड देन कन्वर्ट इट इनटू बाइट कोड, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जावा में सिर्फ कंपाइलर का रोल देखा है, अभी इंटरप्रेटर का कहीं पे रोल नहीं देखा, करेक्ट? अच्छा, ठीक है। तो अभी इंटरप्रेटर का रोल हम लोग अब देखेंगे, ठीक है, अब इंटरप्रेटर का रोल क्या है। so in other languages they use at the place that like Java is using a compiler, they use interpreters. या वो कहा ना कि यहाँ पे लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, एक होता है कंपाइलर जो यूज करते हैं, द अदर वन इज जो यूज करते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। और जावा क्या यूज करता है? जावा दोनों यूज कर लेता है, वो कंपाइलर भी यूज करता है, वो इंटरप्रेटर भी यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज है जावा के साथ, so that makes it a little faster in the group of interpreted languages, ठीक है। Okay. Clear now? Okay. Yeah, thank you. Okay. Anyone is having any other doubt? If no, then we will proceed. Oh. Sorry. तो ये हो गया। तो हम थे अभी बाइट कोड पे, ठीक है। Exactly. I'll just request each one of you to go on mute, please.
Yeah. If you have any question, you can unmute yourself and you can just raise your question here. Okay. चलो, तो हम लोग थे अभी ये क्या किया, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो बाइट कोड है ना हमारा, ये जो बाइट कोड जो हमें मिल गया है यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद, ये बाइट कोड को कौन रन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग? बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? JVM इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो JVM का काम है कि भाई साहब आप इस कोड को लो और इस वाले कोड को मेरा रन करके मुझे आउटपुट दो। ये किसका काम है? JVM का। JVM यहाँ पे कौन है? JVM इज द लेबर, ठीक है। JVM को मैंने सब सामान दे दिया, चलो काम करो, ठीक है, तो वो हो जाता है उसे। तो हम लोगों ने बाइट कोड दे दिया है एंड वी आर आस्किंग इट टू रन ऑन JVM, ठीक है। तो JVM में क्या होता है? यहां पे हमारा यूज होता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। तो यहां पे क्या हो रहा था देखो शफा, तो यहां पे हो रहा था हमारा रीड एंड देन कन्वर्ट। तो यहां पे बाइट कोड इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, करेक्ट? Yes. तो इंटरप्रेटर को अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे रीड करना में और कन्वर्ट करने, बिकॉज इट ऑलरेडी कन्वर्टेड, ठीक है। आया पता चला अब डिफरेंस कि क्यों ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर, तो यहाँ पे ये इंटरप्रेटर का रोल है जो कि इसे कन्वर्ट मतलब बहुत फास्ट कर देता है एंड इट गिव्स अस आवर आउटपुट। हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट वाला काम कौन करके देता है? दैट इज डन सोली बाय JVM। ये कौन करता है? JVM करके देता है, ठीक है। तो वी विल जस्ट मूव टू आवर प्रोग्राम। तो ये देखो ये क्या हुआ, फिर यहाँ जावा बाइट कोड है, जावा बाइट कोड को अब ये जावा इंटरप्रेटर काम किया, ठीक है। देखो दिख रहा है शफा, फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जावा इंटरप्रेटर। तो जावा इंटरप्रेटर को तो ऑलरेडी कन्वर्टेड चीज मिल गया है तो उसे टाइम लगेगा नहीं, तो ये इसको फास्ट बना देता है। तो जावा इंटरप्रेटर को ये सॉरी जावा को ये फास्टली मतलब कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड को, एंड देन हमारा मशीन कोड जो मिला है ये हमारा JVM रन करके हमें आउटपुट दे देता है। परफेक्ट, समझ में आ गया? हाँ। चलो, तो मैंने यहां पे एक लाइन बनाई थी, याद है? लाइन बनाई थी, क्यों बनाई थी? हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस हैपेंस इन योर मशीन 1, ये मशीन 1 में होता है एंड योर सेकेंड पार्ट हैपेंस इन JVM। कहां पे होता है? JVM, करेक्ट? हाँ कि ना? ये बताया ना, सेकेंड पार्ट कहां पे होता है? कहां पे होता है बताओ? JVM बोलो बोलो, JVM. अगर नहीं बोलोगे तो फिर याद नहीं होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मशीन 1 मशीन 1 में, और फिर हमारा दूसरा जो हो गया दैट इज इन आपका JVM, ठीक है। तो ये अभी क्या करना है, ठीक है, कि वी विल एक्चुअली सी कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, वॉट एवर वी हैड रेड इट हियर, कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट बिफोर मूविंग टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आई विल एक्चुअली टेल यू कि हम लोग इस वाले पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, देन वी विल सी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो वी विल फर्स्ट लर्न कि आपका पोर्टेबल वाला पार्ट, कि इसको पोर्टेबल क्यों बोला गया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है ना, go here, I'll just print this. I know it is very difficult to understand, but if anybody wants to refer to it, आप लोग बिल्कुल इसे देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो I'll just move a little further आप लोग को ये समझाने में कि हमारे पास होता क्या है, एक सिस्टम के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग यू, जो अभी आपको समझा रहा हूं ना, ये सिर्फ बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप बस एक बार समझ लो, ठीक है। यू डोंट हैव टू एक्चुअली बाय हार्ट एनीथिंग, और आपको कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना इज समथिंग दैट वी वांट टू डू, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो एवरीथिंग इज इजी। मैंने कहा ना जावा का प्रोग्रामिंग सबसे इजी है, ठीक है। एंड आई एम समवन हु इज एक्चुअली वर्किंग इन अ पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे मेरे पाईचाम भी है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आई वर्क ऑन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पाइथन और इसमें मैंने दोनों पे वर्क किया है, तो जावा इज ऑल्सो सिंपल बट पाइथन के सिंटैक्स काफी इजी होते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, सो थोड़ा सा डेविएट हो गए थे टॉपिक से। सो वी आर एक्चुअली हियर कि एक सिस्टम में होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। एक सिस्टम में हमारा इस तरह से होता है, देखो ये मान लेते हैं ये एक लैपटॉप है या एक ये कंप्यूटर है किसी का, ठीक है। चलो बहुत गंदा सा कंप्यूटर है बट हाँ ये कंप्यूटर है, ठीक है। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज।
सो ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हमारा जहां पे भी आपका जावा जेडीके इंस्टॉल्ड है, जावा जेडीके आपका इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका कंपाइलर सबके पास होता है, ठीक है, कंपाइलर होता है। एंड देन यू आल्सो हैव जे जेडीके है, तो जेडीके मींस आपके पास जेवीएम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जेडीके का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये होने से, जेडीके होने से कंपाइलर एंड जेवीएम आपके पास दोनों है, ठीक है। दिस इज मशीन वन, मशीन वन, ठीक है। और दूसरा है, एक और है यहाँ पे, ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन मोर सिस्टम, ठीक है। और ये मशीन में भी हमारा है ठीक है, जावा जेडीके है, ठीक है। ये है आपका विंडोज का, ठीक है, ये विंडोज का सिस्टम है, ठीक है। और ये किसका सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लेते हैं मैक का, ठीक है, एप्पल वाले का, ठीक है, इसमें मैक है। और यहाँ पे क्या है, इसके पास भी अपना है कंपाइलर, और यहाँ पे दूसरा है आपका जेवीएम, ठीक है ठीक है, मैक है जावा जेडीके और कंपाइलर एंड जेवीएम, ठीक है, दोनों में है, मैक में भी है, विंडोज में भी है, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया आपका मशीन टू, ठीक है। मशीन टू मतलब ये दूसरे का सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो शफाक का सिस्टम है, एंड ये है तुम्हारा प्रसंजीत का सिस्टम, ठीक है। प्रसंजीत इज वर्किंग ऑन विंडोज एंड शफाक इज वर्किंग ऑन मैक, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स है, इसमें क्या होता है, लाइक जब हम कंपाइल कर देते हैं तो व्हाट इज जनरेटेड, क्या होता है, क्या जनरेट होता है बताओ, जब हम कंपाइल यूज कर लेते हैं तो क्या जनरेट होता है, बाइट कोड। बाइट कोड, कोड। परफेक्ट। तो हमारे पास मिल जाता है बाइट कोड, ठीक है। जब ये बाइट कोड मिल जाता है, उसके बाद काम किसका है, ये जेवीएम का काम है, ठीक है, जेवीएम का काम है। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम फिर इसको, अगर हम मशीन वन में रन कर रहे हैं तो दिस जेवीएम विल यूज दिस बाइट कोड, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड जो होता है आपका, और वो फिर हमें आउटपुट देगा, आउटपुट, ओपी मींस आउटपुट, ठीक है, O/P मतलब आउटपुट, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट देता है। कैन वी डू इट दिस वे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमें मिला है, ठीक है, आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो हमें बाइट कोड यहां से मिला है, कैन वी रन दिस इन दिस जेवीएम, यस इसके जेवीएम में यूज कर सकते हैं, यस हाँ कि ना, कर सकते हैं, Yes. ठीक है। कर सकते हैं, तो दोनों इफ, प्रोसेस तो अलग हैं। सॉरी सॉरी, आपकी वॉइस बहुत लो थी, किसी ने कुछ कहा, ओएस का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अलग ओएस पे रन करता है या अलग ओएस पे रन करता है, कर तो मैं सकते बता हैं। रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ जेवीएम की बात की है, ठीक है। तो ये वाला तो है ना कि उसको जेवीएम चाहिए, बाइट कोड को रन करने के लिए कौन चाहिए, बाइट कोड को रन करने के लिए जेवीएम चाहिए, चाहे वो किसी का जेवीएम हो, चाहे मैक का हो, चाहे विंडोज का हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो जेवीएम है, ठीक है, इस जेवीएम के ऊपर हम इस वाले बाइट कोड को रन कर सकते हैं। यानी मशीन वन का मैंने कोड लिखा था, मैंने कोड कहां पे लिखा था, मैंने कोड ये शफा वाले सिस्टम, सॉरी, प्रसंजीत वाले सिस्टम पे लिखा था, और ये जो मैक है ये शफा का सिस्टम है। तो शफा के सिस्टम में मैंने रन करने का सोचा कि आई जस्ट वांट टू रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, जब हमने प्रसंजीत के सिस्टम यानी मशीन वन में कोड लिखा है, एंड आई वांट टू रन इट ऑन मशीन टू जो कि शफा का सिस्टम है, तो ये क्या है, आई कैन डू इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया प्रसंजीत के सिस्टम से कोड लिया, और उसको लेकर कहां पे घूमते घूमते गए, घूमते घूमते हम लोग गए शफा के पास, और शफा को क्या बोले, शफा प्लीज रन दिस कोड। तो शफा ने क्या किया, शफा ने कहा ओके लाओ दो, तो उसने अपने मैक में इस वाले सिस्टम को चलाया जिसके अंदर जेवीएम था। तो जब जेवीएम था तो ये कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा, करेक्ट, हाँ कि ना। हाँ, और हम लोग जब किसी चीज को लेकर घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पोर्टेबल। पोर्टेबल। किसी भी चीज को लेकर घूमने से क्या होता है, वो पोर्टेबल होता है। हम लोग बोलते हैं ना हम लोग बोलते हैं ना पॉटर, पॉटर मतलब कौन होता है, वो जो अपना कूली होता है, ठीक है, जो हमारे सामान को लेकर इधर उधर जाता है वो अपने गाड़ी में, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। तो वो वाला हो गया सॉरी, चलो। तो दिस इज समथिंग कि हम लोग को जानना था, ये पोर्टेबल है, ठीक है। अब मैंने एक चीज कहा, एंड आई थिंक शकील ऑल्सो रेज्ड इट, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट। शकील ने कहा यहाँ पे कि ये कैसे हो गया, एक तो विंडोज सिस्टम है और दूसरा है मैक का सिस्टम, करेक्ट, बात तो बिल्कुल सही थी कि एक है विंडोज का सिस्टम, सिस्टम मशीन वन कौन सा था, प्रसंजीत वाला मशीन कौन सा था, प्रसंजीत वाला मशीन वन वाज विंडोज, ठीक है, एंड शफा का जो सिस्टम था दैट वाज मैक,
ठीक है, ये एप्पल वाला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का कोड रन हो रहा है एज पर व्हाट मैंने जो अभी तक एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कोड रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूं, विंडोज का, ठीक है, याद है हम लोग जब डाउनलोड कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक जगह कहा था कि वहां पे 3 टैब है, विंडोज है, मैक है, एंड देन वाज योर लिनक्स, करेक्ट? याद है किसे? यस यस 3 था वहां पे, याद है कि नहीं बताओ? हाँ याद है। ठीक है, तो वो वैसा क्यों है भाई? जेवीएम और जेडीके तो सब सेम है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग क्यों, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब समझते हो ना? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है एक हो गया आपका विंडोज, दूसरा हो गया आपका मैक, तीसरा हो गया आपका लिनक्स जिसमें आपका उबुंटू और ये सब भी आता है। ठीक है, और एक होता है सोलरिस करके भी एक होता है। ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वैसे ही मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या है तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन था कि या तो विंडोज सेलेक्ट करो, या तो मैक सेलेक्ट करो, या आपका लिनक्स सेलेक्ट करो। ठीक है, तो हमने विंडोज को सेलेक्ट किया था क्योंकि भाई हमारा सिस्टम विंडोज था। पता ये ऑप्शन क्यों देते हैं? क्योंकि जेवीएम जो है ना, जेवीएम इज, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब अगर आपका डिपेंडेंट, ठीक है, और जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब अगर आपका ओएस है तो आपको ओएस वाला ही जेवीएम चाहिए। मतलब अगर आप विंडोज है, ठीक है, चलो विंडोज कर देता हूं, इफ यू हैव विंडोज, अगर आपका विंडोज है तो आपको विंडोज वाला ही चाहिए, तो इसी वजह से वो विंडोज और आपका वो सब अलग अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बाकी जो चीजें हैं ना वो सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जेवीएम है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, तो विंडोज का अलग होगा, मैक का अलग होगा, और आपका लिनक्स का अलग होगा। समझ गए क्यों था वहां पे 3 ऑप्शन? समझे या नहीं? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में आ रहे हैं? ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा जो है जेवीएम, जो है जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ जेवीएम से मतलब है, हमको तो मतलब नहीं है कि वो किसका है, विंडोज का है, मैक का है, किसका है। ठीक है, तो जेवीएम बस होना चाहिए बाइट कोड को रन करने के लिए। ठीक है, टू रन बाइट कोड व्हाट इज नेसेसरी? ठीक है, नेसेसरी क्या है? टू रन बाइट कोड, रन JVM. बाइट कोड, JVM is necessary, JVM is a must। ठीक है, JVM is a must। ठीक है, JVM होना ही होना है, अगर JVM होगा तभी आपका बाइट कोड रन होगा, चाहे आप मशीन 1 से बाइट कोड बनाओ, चाहे मशीन 2 से बाइट कोड बनाओ, और कहीं पे भी ले जाके आप उसे रन करो, तो जहां पे भी रन कर रहे हो उस सिस्टम में क्या होना चाहिए? JVM होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है, और हर सिस्टम का अपना, हर सिस्टम मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी जो जिसको प्लेटफॉर्म यहाँ बोला है, प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे क्या है? विंडोज, मैक या लिनक्स, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत लोग जानते हैं कि ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग ऐसा मतलब सिस्टम। ठीक है, जो होता है विंडोज है, चाहे मैक है, चाहे लिनक्स है, तो जेवीएम किसी का भी हो ये मतलब नहीं है बाइट कोड को। बाइट कोड को क्या मतलब है कि जेवीएम होना चाहिए। ठीक है, और हर सिस्टम का जेवीएम अपना अलग अलग होता है। क्लियर है सबको अब ये चीज? ये बताओ। Yes. ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। इट डजेंट मैटर कि आप मैक में आप कोड लिखे हो और विंडोज में रन कर रहे हो, विंडोज में लिखे हो और मैक में रन कर रहे हो, या लिनक्स में रन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर टू हमारा जावा का कोड। ठीक है, तो जावा इज प्लेटफॉर्म, याद रखना, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कि वो अगर विंडोज का है तो विंडोज का अपना जेवीएम होता है, मैक का अपना जेवीएम होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत आदमी कंफ्यूज जाता है, वो तो उधर इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट था। ठीक है, तो याद रखो जेवीएम इज डिपेंडेंट बट योर जावा इज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे? क्लियर है या नहीं बताओ? ठीक है, तो Yes. अब इस लाइन को जो मैंने बार बार यहां बनाया था फिर से बना देता हूं, सॉरी थोड़ा लाइन टेढ़ा है। ठीक है, तो वी कैन डू दिस इन मशीन 1 एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट वी कैन डू इन एनी मशीन 2, करेक्ट? हाँ कि ना? कर सकते हैं या नहीं बताओ? हो Yes. सकता है ना? तो हमारा जो डॉट जावा सी फाइल जो भी बनता है, वी कैन टेक इट एंड मूव एनीवेयर, तो वी इट इज पोर्टेबल क्योंकि हम लोग लेके घूम सकते हैं कहीं पे भी, एंड देन
इसे कहीं पे भी रन कर सकते हैं जस्ट टू जस्टिफाई कि इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हम लोग मशीन 2 में रन कर सकते हैं। यू कैन टेक योर कोड एंड रन इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप कहीं पे भी रन कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि मैंने क्या कहा था, ये कहीं के भी वर्ल्ड पे कोड रखा है तो यू कैन जस्ट कॉल इट, कर सकते हैं ना कॉल। ठीक है, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है, वी कैन जस्ट कॉल इट एंड रन इट इन आवर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? Yes. परफेक्ट टिल नाउ? हेलो Yes. हाँ, लेट मी जस्ट टेक वन क्वेश्चन, आई थिंक somebody is asking something. Yeah, go ahead please. मैंने कुछ मिस किया क्या? मैं एक कॉल पे था। कॉल पे था? एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट यू मिस्ड, बट दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इज कि एक सिस्टम में आपका जेवीएम, मतलब जेवीएम होने चाहिए सिस्टम्स में, और हर सिस्टम का अपना जेवीएम होता है। ठीक है, आप सिस्टम मतलब ओएस की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपका अगर विंडोज है तो विंडोज का अपना जेवीएम होता है, मैक है तो मैक का अपना जेवीएम होता है, लिनक्स है तो लिनक्स का अपना जेवीएम होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी वर स्पीकिंग। ठीक है, हम लोग यही बात कर रहे थे। और ये चीज है कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस लाइन जो आप देख रहे हो, दिस कैन एक्चुअली रन ऑन मशीन 1। आप कोई भी एक मशीन पे ये वाला पार्ट कर लो और बाइट कोड को लेके घूम जाओ। ठीक है, क्योंकि ये बाइट कोड देखो यहाँ पे है, इस बाइट कोड को किसी भी मशीन पे चला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका ऑल अबाउट हाउ अ प्रोग्राम रन्स। ठीक है, तो चलो जल्दी क्विक रिवीजन, हम लोग जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट अगर किसी, इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट फ्रेश, ड्रिंक वाटर और एनीथिंग, दे कैन जस्ट डू इट। ठीक है, चलो क्विक रिवीजन। व्हाट इज जावा? किसने बनाया था, जल्दी बता दो। जेम्स गॉसलिंग जेम्स गॉसलिंग। कहाँ बनाया था? और माइक्रो सिस्टम अभी ये किसके पास है? ओरेकल ऑरेकल और ऑरेकल कॉर्पोरेशन के पास है। इट इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सिंपल होता है, ये भी आगे चल के देखेंगे। वाइडली यूज्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसकी क्या होता है, इसके वजह से हम लोग को बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलती है जो कि यूज कर रही है, तो दे हैव अ वेल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। ठीक है, एंड दिस इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर हम कैपिटल जेड लिखते हैं और अगर दूसरी जगह, सॉरी एनीबॉडी इज आस्किंग समथिंग? केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस। हाँ, ठीक है, इट रीड्स अपर केस एंड लोअर केस इन अ डिफरेंट वे। इट इज नॉट लाइक अ कैपिटल जेड इज नॉट सेम एज स्मॉल जेड। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल एक दिया था। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। एंड देन मूविंग टू द फीचर्स। फीचर्स में हम लोगों ने क्या किया था, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स? एक है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड, सिंपल Java is सिक्योर object प्लेटफॉर्म oriented, इंडिपेंडेंट simple and रोबस्ट secure. Java is secured and robust. परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर दूसरी चीजों को आपको बोलना है तो यू डेफिनेटली कैन गो अहेड एंड टेल दिस इन योर इंटरव्यू। देखो मैं आपको बता रहा हूं आपसे, Threading and all. या करेक्ट करेक्ट मल्टी, देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इफ यू वांट मी टू एक्चुअली टेल यू कि उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर आप बोलोगे आंसर में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट आई वांट यू टू अवॉइड इट। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट अगर आप इंटरव्यू में बोलते हो ना, तो इंटरव्यूअर आपके वर्ड्स को कैच करता है। ठीक है, इफ यू से कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ही विल टेक यू डीप इनसाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इफ यू से सिंपल, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि टेल मी हाउ इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रोबस्ट पे भी क्वेश्चन नहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज वो सिक्योर्ड है और मतलब अलग अलग एपीआईज यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये सब चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पोर्टेबल आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहां से अगर आप टोटल देखोगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन वाला कौन कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इन दो पे अगर आपसे, Object-oriented and platform. करेक्ट, तो ये जो दो Platform इंपॉर्टेंट, independent was Vora, right? सॉरी, Platform independent was Vora. या दैट वाज Right. वोरा। वोरा मतलब हो गया राइट वंस रन Right एनीवेयर। once, run anywhere. करेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इंटरव्यू के, देखो इंटरव्यूअर आपके वर्ड को कैच करता है। मी माई सेल्फ बीइंग एन इंटरव्यूअर, मैं जब किसी के आंसर सुनता हूं ना, तो आई कैच दैट वर्ड कि उसने क्या कहा। तो अगर आप फिर आ जाओगे ना मल्टी थ्रेडेड पे, अगर आप बोलोगे इट इज मल्टी थ्रेडेड, और अगर इंटरव्यूअर इसके अंदर घुस गया, आई एम टेलिंग यू इट इज एक्चुअली अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इन जावा। तो ये एक्चुअली हम सच में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन में ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ब्रीफ आपको बताया जाएगा आगे चल के, व्हेनेवर विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द कोर्स, तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। बट इसको हम लोग डेफिनेशन में इसलिए नहीं बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको डिस्करेज नहीं कर दे वो। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जस्ट
ये याद रखो कि ये 5 बोलना है, ताकि इंटरव्यूअर अगर इनमें से 5 में से कुछ भी पूछेगा तो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए अभी तक जो बताया गया दैट इज मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावा का सबसे बड़ा पार्ट है और उससे 110% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कंसीडर, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान में रखना है कि आंसर कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्चुअली गाइडिंग यू ऑन हाउ टू आंसर, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, तो ये हो गया हमारा टोटल फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। अराउंड 12 फीचर्स यहाँ पे लिस्टेड है, यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस। तो फिर आते हैं, अब बताओ यहाँ पे क्विक रिवीजन इस पे कर लेते हैं। हम लोग जो सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो फाइल का टाइप क्या होता है, जल्दी फास्ट। डॉट जावा। डॉट जावा फाइल, इसको हम कुछ और नाम से भी बोलते हैं, अगर हम कभी वो नाम से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जावा क्लास फाइल। जावा परफेक्ट उसको बोलते हैं जावा क्लास फाइल। देन उसको कौन कन्वर्ट करता है, हु इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग, कंपाइलर। कंपाइलर। जावा कंपाइलर। कंपाइलर, और ये कन्वर्ट करके क्या बना देता है, फाइल का टाइप, बाइट कोड नहीं बाइट बाइट कोड तो बनाता है, बाइट कोड का फाइल टाइप क्या डॉट होता है, ये डॉट डॉट जावा जावा सी। सी। डॉट जावा सी। डॉट जावा सी, परफेक्ट, ठीक है, डॉट जावा सी फाइल में कन्वर्ट कर देता है, यानी जावा कंपाइल्ड फाइल हो जाता है ये, ठीक है। अब ये बाइट कोड को फिर कौन कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर। जेवीएम। इंटरप्रेटर, और ये कन्वर्ट करके मशीन कोड बना देता है, और जो रन होके हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। नाउ टेल मी कि अगर हम एक मतलब इफ आई एम राइटिंग समथिंग, इफ आई एम राइटिंग माय कोड इन वन मशीन, ठीक है, कैन आई रन दैट इन अनदर मशीन, कैन आई डू दैट, यस। यस। yes it is possible only after compiling it कंपाइलिंग का once। होगा। अगर मैंने कंपाइल नहीं किया है तो फिर हमको दूसरे सिस्टम में ले जाके वहां कंपाइल करना होगा, ठीक है। तो अगर हम कंपाइल कर चुके हैं तो वी कैन टेक आर डॉट जावा सी फाइल जो कि बाइट कोड है, ठीक है, उसको ले जाके हम किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन गो अहेड एंड डू इट परफेक्टली, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कोई भी हम ओएस में रन कर सकते, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, जो कि विंडोज हो सकता है या लिनक्स या फिर मैक, परफेक्ट, परफेक्ट अप टिल हियर, यस। यस। okay, so it is 8:41 let's connect back at 8:50, okay, तो अराउंड 9 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। तो 8:50 में हम लोग वापस से कनेक्ट करते हैं, डोंट लीव द कॉल, यू कैन जस्ट लीव योर, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, ओके, एंड यू कैन जस्ट टेक a break for some 9 minutes and post that we'll resume, okay, dot at 8:50 will start, and if anybody is having any doubt I'll be back by 8:40, 8:45, you can ask me if anybody is having any doubt, okay, चलो, so take your time now.
If anybody is having any doubt, they can raise now. Hi, anyone here? हाँ भाई Sharik, कोई doubt, Sharik? नहीं till now नहीं है Okay, thank you. Anyone else who's here? Hi, Sanya. Yes, sir. Okay. Am I audible? So, yeah, you're audible. So, Sanya, any doubts up till here? No, no. चीजें clear है, easy है? Yes, sir. Sanya, no sir, please call me by my name Faizan, because ये सबसे पहली teaching होनी चाहिए थी, in fact, instead of what is Java. So I'll just tell कि call me by my name, ठीक है? Because industry में whenever you are going, whether it be a person who is 20 years older to you or someone who is actually 5 or 10 years younger than to you, everyone will call each other by their name, ठीक है? तो ये पहली lesson है for someone who is actually moving into an IT industry, ठीक है? So call me by my name Faizan. Okay, thank you. Sure. Anyone else who's here? Hi Prasanjit. Hello. Hi Prasanjit, समझ में आ रही चीजें? Are you able to understand? Yes, Fazan, no issues. No issues. It's understandable, right? Right. Yeah. Thank you. Anyone else who's here? Or else we'll proceed with the course because it's 8:50 now. Hi Baban. Hi Zakia. Hi, sir. No sir, please Zakia. Call me by my name Faizan. Yeah. Faizan. Yeah. So समझ में आ रही है चीजें? Yes, it's quite easy. The way you are teaching is quite good. Okay, thank You you. are Thank you. teaching in a depth. Sorry? You are teaching in a depth that's quite wonderful. Okay. I just want each of my students to get the understanding of everything. Okay. The example you are giving is very much understandable to everyone, I guess. Okay. Hope the same for everyone. Thank you for your comments. Okay. Anyone else who's there? Or else we'll just move forward. Hi Shakil, are you there? Baban, you are there? Okay. Hi Shafaq, are you there? Yes. Okay. Shafaq, समझ में आ रही है चीजें? हाँ. Okay. Thank you so much. Thank you. And to everyone, actually, I will just make a request कि कुछ लोग सर बोल रहे हैं. There's no need to call anyone as sir और मैम. यहाँ पे कोई सर कोई मैम नहीं है, ठीक है? बिकॉज आप जब भी IT इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो यू हैव टू कॉल ईच वन बाय देयर नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है? बहुत लोग फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, ठीक है? तो इट्स गुड दैट यू रिस्पेक्ट. पर्सनली आप किसी से ही मिलो तो यू टेल देम सर और ये सब, बट वेन एवर यू आर एक्चुअली इन अ ग्रुप, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे वो जितना छोटा हो, ठीक है? चलो, तो दिस इज द फर्स्ट लेसन आई शुड हैव टॉट, बट चलो कोई नहीं, इन बिटवीन आते रहने चाहिए कुछ कुछ डोजेस, ठीक है? चलो मूविंग ऑन. Just wanted to ask one thing. Yeah, go ahead please. Suppose at the time of interview, right? Whoever the person is, male or female, right? At that point of time, if I am going to know their name, right? Should I address them at the time of interview as sir or madam, or by their name? By their name. I told you, na, At the this time is of interview also.
Yeah, actually what will happen Okay. right now, if you see everyone's initial letter must be visible on your screen, right? Hmm. Right? Right. So if you Right. just put your cursor over there, see like I put my cursor on your name, so it is showing Prasenjit Sen. Okay. Hmm. So whenever you are there, you have to introduce, "Hey, hi Prasenjit, how are you? Hope you are doing well." So he'll reply to you and he'll ask you the same thing. So he'll say, yes, I'm doing good. How about you? So you have to tell, yes, I'm also good. Thank you. And then you can proceed. Okay. So always start something on a high note, high and positive note. So that is something that we will be teaching you going forward. Okay. How to actually answer things, how to actually sit, how, what is the facial expression that you have to show to the people. Take it, everything we will be guiding you on. So don't worry on these things. In between the course also, I will be giving you tips and I'll be helping you out with each and everything. Okay, come on. So now we will move forward. Already we are delayed by some 4 minutes, and now we will move forward. I hope others who have left, so maybe they'll be joining back. Okay. Sorry. Shakil, can you just turn off your video, please? And your audio as well. Okay. Moving forward, so we were actually discussing about platform independent feature of Java, right? Now moving forward, we actually saw, right, कि we studied about JVM, ठीक है? But हम लोग ने JVM तो कभी इंस्टॉल किया नहीं था. What did we install? हम लोगों ने क्या इंस्टॉल किया था? बताओ. What did we install? JDK. We had installed JDK. लिखा था ना जावा के साथ JDK. आमिर याद है? करेक्ट. तो जावा के साथ JDK लिखा था. तो JDK क्या है? और JVM तो कभी किया नहीं. तो JVM है कहां? तो JVM is actually part of your JDK. JVM क्या होता है? JVM stands for Java Virtual Machine. जावा वर्चुअल मशीन. परफेक्ट. ठीक है. तो JVM जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो आपका होता है जावा डेवलपमेंट किट के अंदर. ठीक है. और सिर्फ JVM नहीं होता है, उसके अंदर और क्या होता है? उसके अंदर होता है JRE. ठीक है. जिसने भी ये फोल्डर्स बनाए थे उनके सिस्टम में देखना एक JRE का भी फोल्डर बन गया होगा. लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप हियर. आई थिंक दैट इज इन माय C ड्राइव. सो दिस PC and I think in the C drive, program files, then Java. देखो ये JRE बन गया, दिख रहा है फोल्डर. ठीक है. हम लोगों ने तो सिर्फ JDK इंस्टॉल किया था तो JRE ऑटोमेटिक बन गया. तो ये जो आपको फोल्डर दिख रहा है ना, इट इज बिकॉज JDK के अंदर ये JRE भी होता है. और JRE के अंदर कौन होता है? JVM. आ गई बात समझ में? ठीक है. तो अब क्या होता है? JVM का कौन है? JVM इज द लेबर काइंड ऑफ अ पर्सन, जो एकदम लेबर है, जिसका काम क्या है भाई? तुम मेहनत तुम करोगे. ठीक है. मेहनत करने वाला कौन है? JVM. ठीक है, वो लेबर है. और JRE क्या करता है? JRE देखो नाम पढ़ के क्या लग रहा है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट. ठीक है. तो ये आपको काम करने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए ना, वो आपको सेटअप करके देता है. जैसे मान लो कि जैसे आई एम स्पीकिंग अबाउट अ कंस्ट्रक्शन, एक घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है. तो लेबर जो है दैट इज JVM. ठीक है. उसके काम है कि उसको रन करना है. ठीक है. तो हम लोग को एनवायरमेंट जो वहां पे सेटअप करना है, ठीक है, कि हाँ भाई ये एक प्लॉट है, दिस इज द प्लॉट ऑफ लैंड जिसपे आपको बनाना है. ठीक है. एंड देन उसको हमको प्रोवाइड करना है. व्हाट ऑल वी नीड टू प्रोवाइड? वी नीड टू प्रोवाइड हिम विद द ब्लूप्रिंट कि देखो ऐसा घर बनाना है. ठीक है. बताते हैं ना कि ऐसा घर बनाना है. और जो भी चीजें लगती है अपार्ट फ्रॉम आपका इन सब चीज से, तो वो आ जाता है मेरा रन टाइम, कि वहां पे काम करने टाइम क्या क्या उसको जरूरत है. उन सब चीजों को हम लोग जावा रन टाइम एनवायरमेंट के अंदर होता है अपार्ट फ्रॉम JVM. तो रन टाइम एनवायरमेंट के अंदर कौन होता है? JVM होता है प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स. ठीक है. जो हमारा डॉक्यूमेंट या जो भी है, ठीक है, कैसे बनेगा क्या बनेगा. एंड देन योर अदर फाइल्स. ठीक है. जो दूसरी फाइल्स भी है वो भी यहाँ इसके अंदर रहती है. ठीक है. तो JRE के अंदर आपके सेट ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, JVM होता है एंड अदर फाइल्स होता है. ठीक है. परफेक्ट. यहां तक समझ में आया? ठीक है. तो फिर अगर ये सारी चीज यहां मिल जाती है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ JDK? हम लोग सिर्फ JRE कर लेते हैं. ठीक है. तो JRE क्या करता है कि भाई वो जो लेबर को काम करने के लिए जो जो चीज चाहिए ना, तो वो सारी चीजें कौन देता है? वो देता है आपका JDK. ठीक है. जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स मतलब जैसे हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का जो टूल्स होता है. ठीक है. मान लो लैडर हो गया या फिर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है. तो वो सब तो वो कौन प्रोवाइड करता है? JDK प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो JDK उसको दे देता है यार ये सब लो. ठीक है. रन टाइम एनवायरमेंट में यूज करो. और जो लेबर है ही विल बी वर्किंग, ये हमको आउटपुट देता है. लेबर कौन आउटपुट कौन देगा? लेबर ही देगा ना. हाँ कि ना?
बताओ, आउटपुट कौन देगा? लेबर। लेबर देगा, करेक्ट। तो ये हो गया। चलो, तो ये हमारा इस तरह से एक सेटअप होता है जो जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं, ठीक है। तो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, और इसके अंदर क्या होता है, ये आपको डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है, यानी आपका जो टूल्स लाइक जावा सी मतलब कंपाइलर वाला, ठीक है। ये कंपाइलर होता है इसके पास जो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड फिर इसके पास खुद का जावा लिखने का सिंटैक्स और ये सब है, तो ये सब इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसके पास मतलब जेडीके के अंदर कौन कौन होता है, JRE होता है प्लस JVM होता है। तो जेडीके कैसे बनता है? जेडीके बनता है आपका, लेट मी जस्ट स्क्रॉल दिस लिटिल अप, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से देखते हैं कि जेडीके कैसे बनता है। जेडीके कैसे बनता है? जेडीके इज मेड अप ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी राइट दिस एंड देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, ठीक है। JRE, ठीक है, ये JRE बनता है प्लस आपका जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपका JRE जो होता है वो किससे बनता है? JRE के अंदर एक कौन होता है, JVM होता है प्लस योर सेट ऑफ फाइल्स, सेट ऑफ लिव फाइल्स, ठीक है, लिव फाइल्स प्लस अदर फाइल्स, ठीक है। चलो, और फिर आपका JVM कौन है? JVM तो भाई अकेला है, तो ये JVM इज जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटरप्रेटिंग, नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग आर कोड, बस सिंपल बोलना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग आर कोड, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल हमारा कोड रन करने के लिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू नो कि जेडीके क्या है, JRE होता है इसके अंदर, और JRE के अंदर कौन होता है, JVM प्लस सेट ऑफ फाइल्स, और JVM क्या है, ये आदमी है जो काम करने वाला है हमारा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी वांटेड टू नो। यस, गो अहेड प्रसन्नजीत, नाउ over to your what I question. was asking is, can I call this JVM as the interpreter? JVM is not your interpreter. JVM stands for Java Virtual Machine. देखो वर्चुअल मशीन क्या होती है, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि नाउ वी आर हैविंग वर्चुअल एंटरटेनमेंट, तो वर्चुअल मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट विजिबल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या होगा, इट मीन समथिंग दैट इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये एक ऐसा जगह होता है जहां पे हमारा कोड रन होता है, ठीक है, जो इंटरप्रेट करके जो कोड रन होता है जिसके बाद आउटपुट मिलता है आपको, तो वो JVM के अंदर होता है, समझ गए? ओके ओके, क्लियर नाउ? तो JVM को इसीलिए वर्चुअल मशीन बोला जाता है कि वो भी एक समझो कि एक कंप्यूटर के जैसा है जो वर्चुअली है, जो दिखता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कोड उसी में रन होता है, ठीक है, समझ गए? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ठीक है। एनीबॉडी इज हैविंग एनी अदर डाउट्स अप टिल हियर? बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? हाँ या ना बोल दो। No. Then we are good to move forward. I'll just request each one of you. Okay, so once I'm teaching, just keep your self muted, and after that we can do. Okay, so I'll just be copy pasting this in the group for anybody who wants to refer this. Okay, so this is pasted now. Okay, till here it is pasted, so I'll again do it here. Let me just close this screen. Done. I think our recording is there. And then we will move with Mac Windows into screen. Control V. It will be available for all of you so that you can just have a glance through these when you are revising or when you are just looking at things just to revise for yourself. Okay, so let me bring it here on screen. Control V. And the last one is this particular thing. Okay. So these are the few things that we wanted to discuss up till here, ठीक है। So आज के लिए आज हम लोग इतना काफी करते हैं, ठीक है। उसके बाद tomorrow we will be moving further into आपके Java पे, ठीक है, which is class, object, different variable types, ठीक है। इस पे हम लोग आगे further move करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने starting में कहा था, we will also look into the program, correct?
हम लोग प्रोग्राम को एग्जैक्टली देखेंगे कि हमारा एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने सिर्फ Eclipse सेटअप किया है, आप लोगों के पास अब एक वर्क स्पेस ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, बट स्टिल फॉर एनीबडी हु वांट्स टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्क स्पेस, वो वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आई बिलीव जिसने भी मतलब मेरी वीडियो फॉलो की थी उनका ऑटोमेटिक एक वर्क स्पेस बन गया था। ठीक है, लास्ट में वो जो स्टार्टिंग में ही वो रहता है कि वर्क स्पेस वाला पार्ट, एंड वी हैड क्लिक्ड ओके। ठीक है, तो वो आपका वर्क स्पेस बन चुका है। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर वर्क स्पेस, आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो अपने डिजायर्ड लोकेशन पे। ठीक है, चलो, सो वी विल मूव टू आवर Eclipse। ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, राइट? ओके, थैंक यू। चलो, तो ये हो गया, एंड विल बिफोर क्लोजिंग विल जस्ट देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अगर आपको वर्क स्पेस, देखो आई एम टेलिंग यू कि ऑलरेडी सबका वर्क स्पेस बन चुका है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स एवरी टाइम, हर बार नहीं करना है ये चीज। ठीक है, मैं सिर्फ एक बार समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली वर्क स्पेस बना के फिर कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी आपका ऑलरेडी एक वर्क स्पेस बन चुका होगा, आई टेल यू द नेम, क्या नेम होगा उसका। ठीक है, Eclipse डैश समथिंग करके लिखा होगा, तो वो आपका ऑलरेडी होगा। वेन एवर यू ओपन, तो वहां पे आपका नाम आ जाता है। ठीक है, ओके, तो वो जो नाम होगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक Eclipse वर्कस्पेस, ये वाले नाम के साथ आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं रखना है सी यूजर जो भी है, इसमें अगर आपको नहीं रखना है, एंड यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे आप अपने कोड्स को रखना चाहते हो, यू डेफिनेटली कैन डू दैट। तो वो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं करना है, इफ यू आर हैप्पी विथ वेर एवर इट इज प्लेसिंग, ये Eclipse वर्कस्पेस वाले में, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस वन। ठीक है, ये Eclipse वर्कस्पेस वाला। चलो, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्लोज दिस वन फॉर नाउ। ठीक है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, आई जस्ट गो टू वन ऑफ माई ड्राइव्स एंड आई जस्ट क्रिएट अ फोल्डर। तो माई पीसी, मैं जा रहा हूँ आपके डी ड्राइव में। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक फोल्डर बनाना है बस। ठीक है, एक फोल्डर बना लो। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना है, बस यहाँ पे नाम लिख दो, जो भी आपको नाम देना है। आई एम गिविंग बैच January वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस, और मैं अपनी सारी कोड इसी पे रखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा वर्क स्पेस बन गया, मैंने बस नाम दे दिया। इफ यू वांट यू कैन गिव कुछ और भी नाम, अगर आपको प्रैक्टिस देना है, जैसे मैंने यहाँ प्रैक्टिस दिया है, जो भी आपको नाम देना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, बैच January वर्क स्पेस। ठीक है, ये मैंने दे दिया, और कहाँ पे बनाया, डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, चलो, बस ये नहीं काम करना होता है एक वर्क स्पेस बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने Eclipse पे, एंड देन वी विल ओपन दिस वर्क स्पेस, और उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो, वी विल ओपन दिस Eclipse। तो Eclipse ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वर्क स्पेस पे जाएंगे। यहाँ पे तो वर्क स्पेस मेरा लिस्ट होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं और उस फोल्डर तक जाते हैं जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मेरे दिस पीसी में, डी ड्राइव में था मेरे, तो आई जस्ट गो टू माई डी ड्राइव। डी ड्राइव में जाने के बाद दिस वाज द नेम, राइट, बैच January वर्क स्पेस। तो मैं इसे बस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक चीज याद रखना, आई जस्ट गिव यू मतलब पहले से इंफॉर्मेशन, कि कभी भी जब नाम दे रहे हो ना, डोंट गिव अ स्पेस, अंडरस्कोर भले यूज कर लो। ठीक है, स्पेस मत देना कभी भी, वेन एवर यू आर डूइंग इट, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी बैच January वर्क स्पेस जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, बैच के बाद स्पेस नहीं दिया, जनवरी का जे कैपिटल कर दिया, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये ऐसा अलग अलग है। ठीक है, तो कभी भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, चलो, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये देखो मेरा आ गया डी के अंदर बैच January वर्क स्पेस, और कुछ नहीं, बस लॉन्च कर देना है आपको। ठीक है, इट विल गेट लॉन्च्ड, और उसके बाद फिर हम लोग कोड लिखेंगे। What happened? ये It हो just रहा है। got disconnected because of some network issue. So did I miss on something? I was just trying to create a folder here. I'll just show you again till the time it is loading. So I was just telling if you want to just create another workspace for yourself, तो आप क्या कर सकते हो
तो आई जस्ट वेंट टू माई डी ड्राइव, ठीक है, वहां मैंने एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम था बैच जनवरी वर्कस्पेस, ठीक है। तो ये वर्कस्पेस बनाने के बाद आई जस्ट ओपन माई इक्लिप्स, और वहां पे जब जो पहला ऑप्शन आता है वहां पे मैंने अपने वर्कस्पेस का ब्राउज करके लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये ब्राउज करके जब मैंने किया तो ये देखो ये बैच जनवरी वर्कस्पेस ओपन हो गया है एंड वी आर हियर। फैजान, हाँ हाँ, गो अहेड। ये मिल नहीं रहा, मैं भी वर्क किस तरह लिखा है लेकिन ब्राउज कर रहा हूँ तो वो मिल नहीं रहा। ब्राउज कर रहे हो तो जिस फोल्डर पे रखे हो वहां पे आप जाओ, वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में कोई फाइल है तो ऑब्वियसली ब्राउज करने से मिल जाएगा। इफ नॉट आफ्टर द कॉल वी कैन जस्ट कनेक्ट एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई कैन चेक दैट। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद वी कैन एक्चुअली ऑप्ट और वी कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर, बट मैं अभी फिलहाल के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ आवर क्लासेस, ठीक है। बाद में चल के हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक जो प्रोसेस होता है विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो चलो चलते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद विल गो टू न्यू, ठीक है। हाँ सॉरी, ये न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन है जावा प्रोजेक्ट। अगर आपको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो जस्ट लुक डाउन, यहाँ कहीं पे मिलेगा, और अगर यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलता है जस्ट गो टू अदर्स, ठीक है। अदर्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो, मेरे टॉप में था बट स्टिल मैंने अदर्स पे जाके दिखा रहा हूँ आपको। ये जावा प्रोजेक्ट कर लो एंड देन डू नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, वर्क स्पेस बनाया, फिर सेकेंड टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या किया था, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वर्क स्पेस बनाया, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल अप, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट थिंग इज वी क्रिएटेड अ वर्क स्पेस, क्रिएटेड अ वर्क स्पेस। सेकेंड, व्हाट डिड वी डू, ठीक है, इनसाइड इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्रिएटेड जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स, ठीक है। एक बार कर लोगे तो बार बार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ क्लास प्रैक्टिस दे दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैंने इसे नाम क्या दिया कि हम लोग प्रैक्टिस नाम दे दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, बस आपको यहाँ क्या करना है, फिनिश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ये करना है कि नहीं करना है, जस्ट आई एम प्रेसिंग डोंट क्रिएट, ठीक है, या मुझे क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये प्रैक्टिस जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था दिस इज हियर नाउ, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद सोर्स में जो एसआरसी लिखा है जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो, जो आपका एरो पॉइंट कर रहा है, इस एरो पे क्लिक करो एंड दिस गो टू एसआरसी। हेलो एसआरसी, कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज। ठीक है, तो ये एसआरसी पे जाना है और एसआरसी पे राइट क्लिक करो, और इसके बाद जाना हमें कहा, पैकेज के अंदर, ठीक है। तो पैकेज अभी हम लोग बना लेते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ये पैकेज होता क्या है, ठीक है। तो ये एक पैकेज मैं बना लेता हूं, ठीक है, और पैकेज के अंदर मैं ऐसे नाम दे देता हूं बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है। मेरे बेसिक प्रोग्राम्स इसके अंदर रखूं, बेसिक अंडरस्कोर प्रोग्राम्स। मैंने बार बार कहा है स्पेस का भी यूज मत करना, ठीक है। इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश, अगर आपको सब छोटे में लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो फिनिश। ये देखो एसआरसी के अंदर बेसिक प्रोग्राम्स आ गया मेरा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और इसके बाद फिर हमें जाना है एंड क्लास, क्योंकि जावा का क्या बनाना है, अब क्लास बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे विल जस्ट राइट इट डाउन एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने किया यहाँ पे, ठीक है, क्लिक्ड ऑन एसआरसी, क्लिक्ड ऑन एसआरसी, और फिर क्रिएटेड पैकेज, ठीक है। पैकेज बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अब पैकेज को क्या करना है, अब क्लिक ऑन पैकेज, फोर्थ क्या था, क्लिक्ड ऑन पैकेज,
और अब क्या करना है, क्रिएट अ न्यू क्लास, न्यू क्लास। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। तो अब ये क्लास का नाम आप कुछ भी दे दो, बट वन देखो हम लोग को क्या करना है, इंडस्ट्री का अब कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, देयर इज नो डाउट कि हम कुछ भी लिखेंगे तो ये सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डे वन से कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेस यूज होता है ना वही यूज करते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि वहां जाओगे तो लगेगा यार हाँ ये बंदे को पता है कि कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन इज एक्चुअली कैसे लिखा जाता है किसी चीज को। ठीक है, या कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है उसको कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम है ना, द नेम दैट वी आर गोइंग टू गिव हियर, यहाँ पे हम लोग उससे क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से पहला वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला वाला कैपिटल लेटर से। Hello, sir. I have a question. हाँ या Hello. गो अहेड प्लीज। हाँ हाँ गो अहेड। Actually, sir, how to create a WordPress? आई शोड Actually, इट I हियर। don't know anything. Actually, I have joined late. Okay, so Baban, actually this part was already taught here, but still I'll just revise it. आपको कुछ नहीं करना है, for creating a workspace you just need to Actually, create a then, folder. I don't know anything. Okay, so Baban, what you can do is we will be actually giving the recording of this session. देखो ये record हो रहा है already, ठीक है, तो इसका recording आपके पास available होगा। तो if you just go a little back to this one, तो अभी 141 हो रहा है, तो just 5 minutes back. So from 136 you can stream. Okay, Baban? Okay. Okay, from 136, but Can you still I'll send me just do a quick recap for after you. class? Okay, Can you send me the recorded class? recording session will be in the group only. This group only you will get the recording. Okay. 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 Okay, thank you. चलो, तो ये हो गया हमारा नेम। ठीक है, जो नेम हो गया, विल जस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, क्योंकि इंडस्ट्री में कन्वेंशन होता है, विल फॉलो दैट। ठीक है, तो क्लास का नाम हमेशा देखो, आई जस्ट राइट इट इन स्मॉल। देखो यहाँ पे ऊपर में कुछ लिखेगा, यहाँ इस जगह पे नोट करना। ठीक है, इस जगह के नीचे पे नोट करना कि यहाँ कुछ लिखेगा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लेटर में कुछ भी लिख दे रहा हूँ कि मतलब डिस्प्ले माई मैसेज, डिस्प्ले। देखो ये क्या लिखा है, टाइप नेम इज डिस्करेज। ठीक है, बाय कन्वेंशन जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर, बोला ना। ठीक है, तो हमेशा हम लोग कन्वेंशन को फॉलो करना है। तो क्लास नेम जब भी दे रहे हो ना, तो कोशिश करो कि गिवन स्टार्ट विद अपर लेटर, कोई भी पहला अपर लेटर हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले मैसेज कर दिया, डिस्प्ले MSG। ठीक है, मैंने लिख दिया, अब देखो कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, बस यहाँ पे ये लिखा एंड देन वी आर डूइंग फिनिश। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट सिंस वी आर एट द वेरी बिगिनिंग, आई डोंट वांट यू टू यूज डिफरेंट ऑप्शंस। मैं ओवर द कोर्स आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आपको कैसे क्या यूज करना है, मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल प्लीज डोंट यूज, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए कोड लिखने की। ठीक है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू फोकस मेजरली ऑन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पब्लिक क्लास डिस्प्ले मैसेज। तो देखो मैंने जो दिया था वो एग्जैक्टली सेम है, करेक्ट, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, है कि नहीं? हेलो, करेक्ट। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसके बाद देखो, ए लाइन को बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन टू यू जब हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट अभी आई डोंट बिलीव, बहुत लोग स्टार्टिंग में से बता देते हैं कि ये है, बट अगर मैं बता भी दूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बस अभी ये लाइन को बस दिल से एकदम याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड स्पेस मेन, लिख लिया। इसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब सर्कुलर ब्रैकेट देना है। ठीक है, दे दिया, देखो सर्कुलर ब्रैकेट दिया, और इसके अंदर इसके अंदर हमें लिखना है कैपिटल S, बिकॉज केस सेंसिटिव है जावा, याद रखना। तो कैपिटल S में लिखना है S, फिर स्ट्रिंग स्मॉल, स्ट्रिंग कैपिटल स्ट्रिंग लिख लिया, उसके बाद स्पेस ARGS, आर्ग्स, और उसके बाद आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट जब बहुत लोग बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। ठीक है, आई जस्ट जूम इन फॉर यू पीपल। ठीक है, कि उसको कैसे लिखना है। उसके बाद आप एंटर करोगे, एंटर प्रेस किया, इसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस, एक ओपन और एक क्लोज, ये हो गया, और उसके अंदर आके एंटर, बस ये प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल S। ये लाइन को बाय हार्ट कर लो, आई एम टेलिंग यू, ये लाइन को एकदम याद कर लो। ठीक है, याद कर लो इस चीज को,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स जिसमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। ठीक है, ये याद कर लो, आई टेल यू क्यों याद करना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। आई जस्ट जूम इन फॉर यू पीपल, ठीक है, कि आपको थोड़ा समझ में आए एग्जैक्टली कि ये क्या है। ठीक है, ये देखो माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? यस। तो ये क्या हो गया, ये वाले लाइन को आप बिल्कुल एकदम बाय हार्ट कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स वाले को। ठीक है, क्योंकि ये होता है आपके कोड को रन करने का एंट्री पॉइंट। जैसे बोलते हैं ना, हर घर के बाहर एक दरवाजा होता है, तो उस दरवाजे के अंदर मैं जाऊंगा तब कुछ कर सकता हूं, करेक्ट? हाँ कि ना? इफ आई वांट टू डू समथिंग एट अ होम, हमको उस दरवाजे के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये समझ लो ये एक एंट्री पॉइंट है, ये वो दरवाजा है। ठीक है, तुम जिसके अंदर जाओगे और जिसके अंदर तुम कोड लिखोगे, इसीलिए ये दो ब्रैकेट जो अलग से दिया है, इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। अभी बेसिक में आप यही समझ लो। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, स्ट्रिंग आर्ग्स, और अगर नहीं लिखोगे, अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो बिल्कुल ये लाइन दिल से याद कर लो, बिकॉज हर प्रोग्राम में ये लिखना है, एंट्री गेट आपका यही है हर प्रोग्राम में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने लिखा है कि डिस्प्ले मैसेज, मेरा जो भी मैसेज है आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले इट। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट out डॉट स्मॉल में प्रिंट PRINT प्रिंट LN साथ में है। ठीक है, और उसके बाद दो ब्रैकेट्स दो और आप सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन मिस मत करना। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, और यहां पे हम लोग अपना मैसेज लिखेंगे अंदर में, और मैसेज कैसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है, और अभी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपने मैसेज को। तो मैसेज क्या है, हाय आई एम स्टडिंग, या छोड़ो लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, हाय दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने ये मैसेज लिख दिया यहाँ पे कि हाय दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो यहाँ स्टार बना है, स्टार बना है ना यहाँ डिस्प्ले मैसेज के नाम पे, देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है डिस्प्ले मैसेज नेम जावा के पास स्टार बना है, ये दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, ये स्टार का मतलब होता है कि आपने उस फाइल में कुछ चेंजेस किया बट सेव नहीं किया है। ठीक है, तो अभी सेव करने के लिए आई एम प्रेसिंग Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S एक साथ करें, देखो ये हट गया स्टार, है ना? तो अब आपका ये कंप्लीटली सेव हो गया है प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो ये वाला क्यों लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखना होगा जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है ना, तो ये वाला आपको लिखना ही होगा, और ये ब्रैकेट के अंदर, और ये जो भी अंदर मैसेज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो रन करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जूम आउट करके अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, चलो हमारा सब कुछ सेव्ड है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, कहीं पे भी व्हाइट स्क्रीन में कहीं पे भी आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, कर दिया राइट क्लिक, इतना बड़ा लिस्ट आ गया, इसमें आपको जाना है, ये देखो प्ले वाले बटन दिख रहा है, रन एज, और इसमें जाके आपको करना है जावा एप्लीकेशन। ये हो गया आपका जावा एप्लीकेशन। देखो हम लोगों ने मैसेज क्या लिखा था, हाय दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। देखो ये बिल्कुल सेम मैसेज यहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ नीचे में ये वाले पार्ट को देखो, दिख रहा है, करेक्ट है, दिख रहा है या नहीं बताओ? यस यस। ठीक है, तो अगर ये विजिबल है दैट मींस दिस इज योर वे ऑफ प्रिंटिंग एनीथिंग। अगर आप लोग कभी जाते हो एटीएम जाते हो, है ना, वहां लिखा होता है हाय वेलकम टू SBI ATM, हाय वेलकम टू एक्सिस बैंक ATM, या कुछ भी जो भी आपका बैंक है वो लिखता है ना, हाँ कि ना? लिखता है, लिखता है। तो वो जो हार्ड कोडेड मैसेज है ना, तो वो इसी तरह से जाता है। कभी भी सॉफ्टवेयर, देखो जावा सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज होता है सारे जगह पे, तो कोई भी हार्ड कोड मैसेज अगर आपको कहीं पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब देखो मुझे अगर कुछ मैसेज चेंज करना है, इफ आई वांट टू चेंज, ठीक है, मैं हाई गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, हाई, या सिर्फ गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, GOOD गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने गुड मॉर्निंग लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया यहाँ पे, Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रिंट जो होगा, अभी तक यहाँ पे ये था, तो अभी जब हम लोग रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट करना चाहिए बताओ? हाय गुड मॉर्निंग।
सिर्फ गुड मॉर्निंग, हाय नहीं है, सिर्फ गुड मॉर्निंग है, ठीक है। सॉरी, गुड मॉर्निंग। तो ये करेंगे रन एज एंड फिर जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो सिर्फ गुड मॉर्निंग आ गया हमारा, आ गया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तो आपको कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो ये याद रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस जगह पे आपको मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज लिखो, ठीक है। तो आज के कैप्सूल में एक्चुअली है प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम है वो आपको मिलेगा, बिल्कुल आप उसको करो, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि आपको ये नोटबुक में आपको हैंड रिटन नोट का आपको फोटो भेजना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको कहीं पे खोजना नहीं पड़ेगा, अरे यार क्वेश्चन कहाँ था, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, ठीक है। और खुद का लिखा हुआ नोट्स ना ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वॉट एवर नोट्स आई एम प्रोवाइडिंग दैट इज एवरीथिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक नोट्स देता हूं, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। वरना अगर आप एक्सप्लोर करो गूगल में, यू विल गेट सम 10 लाइंस और मे बी 100 लाइंस फॉर वन पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लॉगर्स है, दे आर देयर टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू थिंग्स इन अ मोर डेप्थ, ठीक है। तो वो, लेकिन सिंस इट इज नॉट नीडेड फॉर अस, इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है, सो वी वोंट बी वेस्टिंग आवर टाइम ऑन एनीथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। वरना मैं भी चाहूं तो लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स आई कैन एक्सटेंड दिस कोर्स टू 6 months टीचिंग यू एवरीथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम लर्निंग एनीथिंग दैट इज एक्चुअली आई कंसिडर वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बट इट इज गुड टू हैव नॉलेज ऑन दोज थिंग्स, सो यू कैन जस्ट यू आर फ्री टू एक्चुअली एक्सप्लोर थिंग्स, और आप बिल्कुल आप लर्न कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। और आज का जो आपको प्रोग्राम मिला है, ठीक है, दैट विल बी इन योर कैप्सूल। आपको बहुत इजी प्रोग्राम है, ठीक है, बिल्कुल ये सारा कोड ऐसे ही लिखना है आपको, and then I'll just take a screenshot and put it in the group। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो you can just refer this as well, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम है that is let me just bring it up here, you have write a program to print let me bring it here okay, so it is write a program to print I am student at Regrowtech। ये हो जाएगा, इजी है, करेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज द ओनली प्रोग्राम जो आपको करना है, क्योंकि क्लास में आपको एक ही प्रोग्राम सिखाया गया। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है जस्ट फॉलो दैट, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट। इफ यू वांट टू डू और इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग दैट विल बी ऑफ बेनिफिट टू यू, ठीक है। बट इफ यू आस्क मी, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं एवरीथिंग विल बी इन लाइन टू आवर प्रोसेस, ठीक है। और आपको जो आप आगे पढ़ के रखोगे that definitely will help you to understand concepts in a much better way। आप definitely एक्सप्लोर करो, आप जानते हो, नॉलेज है तो बिल्कुल यूज करो, ठीक है। तो बस ये है आपका एक कैप्सूल, अब ये थोड़े देर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी सेंडिंग इट ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है। और नोट्स भी आपको बाय द एंड ऑफ द डे मिल जाएंगे, बट प्रायर टू दैट आई जस्ट वांट यू पीपल टू राइट द आंसर टू दिस वन, ठीक है। आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको कैप्सूल भी मिलेगा, बट कैप्सूल यू हैव टू कंप्लीट एंड सेंड इट बैक टू अस, आवर मेंटर्स। One is Iram and the other one is Shahid Aftab। So these two people actually will be monitoring your progress on a daily basis। So those who have actually registered or those who haven't registered yet, maybe some are there who haven't registered। So अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे एंड सपोर्ट, मतलब जो नेक्स्ट 3 days है, that is today, Tuesday and Thursday, till this time we will be giving support to each and everyone। okay, so आप सभी को सपोर्ट मिलेगा, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, बट पोस्ट 3 days, that is our class on Saturday, we will be moving further with only those who have registered here। okay, so that was all from my end for today। so if anybody is having any doubt up till here, they can ask। come on, let me check with Amir। Amir, do you have any doubts? Hi Amir, do you have any doubt? okay, move on to Prasanjit। Hi Prasanjit। Hello. No, there is no doubt. Everything is clear, right? Everything is clear. Everything is clear. okay, thank you Prasanjit। now moving to Shafa। Shafa? No, no doubts. okay, thank you। Thank you. Sharik? Sharik, do you have any doubts? No, Kevin. okay, thank you। Zakir, you have any doubt? No, sir. Sorry, please don't call me sir again, I'm actually just calling। No, Faizan. okay, no problem, no problem।
Okay. Then Sania, do you have any doubt? No, no, no doubts. Okay, thank you. Baban, do you have any doubt here? I have doubt, but I have joined late. Definitely, you can go through Second part. the recorded session. It will be available in this Yeah, yeah. very same group. Go ahead, please. Yeah. Please send me your capsule. Then I think this. Okay. Okay, sure. Okay, Shakil, do you have any doubt? No, bro. Okay, thank you. All things are awesome. Thank you. So if you people like feel, if you know of anyone who can join us, because I'm telling you, like, जो टाइम बर्बाद हो जाता है ना, that doesn't come back. ठीक है, और हमारे जो मतलब सेशंस है